हेलो एवरीवन। द यंग इंडियंस के इस नए एपिसोड में उन करोड़ों युवक युवतियों का स्वागत है जो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ प्रोग्रेस करना चाहते हैं। चलिए, एक इस नए फॉर्मेट में जो है हम थोड़ी सी छोटी सी कॉमेडी भी दिया करेंगे आपको। तो हंस लेते हैं 1 मिनट के लिए। इट्स ए गुड शॉर्ट वीडियो, देखते हैं। हेलो सर। हाँ जी। सर, हमारी कंपनी एक छोटा सा सर्वे कर रही है, उसके लिए आपसे कुछ सवाल पूछने थे। जी पूछिए। सर, आपका नाम? गौरव। गौरव। सर, आपकी शादी होगी? अरे नहीं हुई अभी। अब सर, आपके घर में कौन कौन है? जी मैं अकेला ही रहता हूँ। सर, घर पर कोई वेपन या कोई नुकीली चीज, तलवार जैसा कुछ पड़ा है? जी बिल्कुल नहीं। सर, आपको मार्शल आर्ट या कुंग फू कराटे कुछ आते हैं? नहीं नहीं भाई साहब। सर, मान लो कि आपके घर में चोरी हो जाए, तो आप अपने सेल्फ डिफेंस में क्या कर सकते हैं? अरे भाई साहब कुछ भी नहीं। चल बता, पैसे कहाँ हैं? जल्दी बोल। ये पकड़। भाई साहब मेरे तो Thank you. लग गए। अगला वीडियो हम देखेंगे, ये हैप्पीनेस के ऊपर है कि अपने जीवन में आप हैप्पीनेस कैसे पा सकते हैं। ये वीडियो इंग्लिश में ही है, सबटाइटल भी साथ में है। और मैं आपको हमेशा कहता रहा हूँ कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर आपके यहाँ ना आता हो तो मंगाना शुरू कर दीजिए, उससे आपकी नॉलेज काफ़ी बढ़ेगी। और इंडिया में हिंदी और इंग्लिश तो चलते हैं, एक चलती है इंग्लिश। तो बोथ द लैंग्वेजेस दे गो टुगेदर। तो उससे आपको काफ़ी सीखने को मिलता है। ये जो ये कर्टसी है, ये जो चैनल जो है, दैट इज़ डेयर टू डू मोटिवेशन, ऐसा कुछ इसमें रहता है। तो लेट्स हैव ए लुक एट दिस वीडियो। Once upon a time, in a small village, there lived a wise old monk. He was known far and wide for his wisdom and sense of humor. One day, a young and eager student named Sam approached the master and said, "Master, I want to learn the secret to happiness and success. Please teach me." Master Sito looked at Sam with a twinkle in his eye and said, "Very well, young one. But first, you must complete a simple task. Go to the market and buy the biggest, juiciest watermelon you can find. Then carry it on your head and walk through the village without dropping it." Sam was puzzled but determined. He went to the market and found a massive watermelon. Balancing it on his head, he walked through the village with utmost concentration. As he passed by, people couldn't help but laugh and cheer him on. Some even joined in, clapping and making funny faces. Finally, after a bumpy journey, Sam reached Master Situ's hut. The watermelon was intact, and Sam was relieved. He looked at Master Situ, expecting to be praised for his accomplishment. But Master Situ burst into laughter. "Well done, young one," he exclaimed, wiping tears of mirth from his eyes. "You see, the secret to happiness and success is simple. Just like carrying that watermelon, life can be full of challenges and unexpected twists. But if you face them with a light heart and a sense of humor, you will find joy even in the toughest moments." Sam couldn't help but laugh too, realizing the wisdom in Master Situ's words. From that day on, he approached life with a smile, facing challenges with the same determination he used to carry that watermelon. And whenever he felt overwhelmed, he would remember the funny watermelon lesson and find the strength to keep going. You see, in life, in your life, embrace challenges with a sense of humor, and you will find that life's journey becomes a joyful adventure filled with laughter and success. Be determined, but don't take yourself so seriously. And whenever you feel down or defeated, remember something funny that once happened to you. This is Dare to Do Motivation Stories. Thank you so much for watching, and stay blessed.
यूट्यूब पर ही एक चैनल है फिल्टर कॉपी। अभी जो आप वीडियो देखेंगे उन्होंने कुछ समय पहले कुली नंबर 1 को प्रमोट करने के लिए बनाया था, वो आप देखिए, इंटरेस्टिंग है। तो वैसे भी आजकल लड़का लड़कियों को जो है कुछ डेटिंग वीटिंग करना ज़रूरी हो गया है। दे मस्ट मेंटेन गुड रिलेशंस विद देयर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वट एवर इज देयर। तो देखिए, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। बड़े बड़े देशों में ऐसे छोटे छोटे चांसेस बहुत कम मिलते हैं सेनोरिटा। जब तुम्हारी मम्मी एक दिन के लिए घर से बाहर जाए। बेटा, सॉरी, मम्मी के प्लान्स तो आज कैंसिल हो गए। नमस्ते आंटी। आओ। आई एम रियली सॉरी, वो पहले मुझे लगा आना थी आंटी। आंटी? अपनी गर्लफ्रेंड की माँ को आंटी कहते हो? नो, आई एम सो सॉरी आंटी। नहीं मतलब आई एम सो सॉरी मम्मी जी। बेटर। आहाना को पता है तुम उसको प्रपोज करने वाले हो? व्हाट? नो आंटी। मम्मी। नहीं, आई मीन मम्मी जी, मैं उसको प्रपोज मैं नहीं करने वाला हूँ प्रपोज। प्रपोज नहीं करने वाले हो तो उसके साथ टाइम पास कर रहे हो? आप गलत समझ रहे हो, मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छे से जानती हूँ, हर हफ्ते नई गर्लफ्रेंड ढूंढते हो। आने दो आहाना को। दिस हैज टू स्टॉप। मैं ऐसा लड़का ही नहीं हूँ आंटी। अरे रिलैक्स हो जा पुत्र, मैं तेरी लेग पुलिंग कर रही हूँ। ये आना कहीं गई हुई है क्या? हाँ, मैं भी उसी का वेट कर रही हूँ। उसे एक ड्रेस दिखानी थी, तुझे दिखाऊं? हाँ बिल्कुल जी, इफ यू डोंट माइंड। आपको नहीं लगता ये थोड़ा सा ज्यादा ही झटाक हो जाएगा उसके लिए? क्या? हाँ मतलब उसको थोड़ी सिंपल चीजें पसंद है ना। क्या बात कर रहा है? इतने साल से उसको जानता है, उसका टेस्ट नहीं पता तुझे? शी इज गोइंग टू लव इट। हुस्न है सुहाना, इश्क है दीवाना। अंशुमन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कैचअप कर रहे थे और क्या। मुझे ये बताओ कि तुम दोनों कॉलेज के टाइम से साथ हो ना? नहीं आंटी, कॉलेज में तो इसका बॉयफ्रेंड था ही नहीं ना कोई। पढ़ाई कर रही थी पूरे टाइम। या मॉम, एग्जैक्टली। तब तो कहाँ मेरा कोई बॉयफ्रेंड था। आई वॉज वेरी फोकस्ड, यू नो। कॉलेज ऐसे थोड़ी ना टॉप किया है मैंने। हाँ, बहुत फोकस थी, पता है। कुली नंबर 1 देख के आई थी और दूसरे दिन हिंदी के पेपर में जाके शादीराम घर जोड़े के डायलॉग लिख दिए थे। गॉड या मॉम, ये 95 के जोक्स आप कितनी बार रिपीट करोगे? उसमें क्या है, तेरा पहला बॉयफ्रेंड तो पहली बार सुन रहा है ना। मम्मी आप ये सब छोड़ो ना। आपको तो मूवी देखनी थी ना, वो नई वाली कुली नंबर 1। मैं Amazon प्राइम वीडियो पे लगा देती हूँ। हाँ तो अंशुमन, हम तो मूवी देख रहे हैं ना, तो तुम अपनी AC/BC DC गाड़ी में बैठ के निकल लो, ओके? अरे रे कैसे जाएगा? मैं ये फिल्म अपने होने वाले दामाद के साथ देखूंगी, है ना? जी मम्मी जी। जी वैसे मैंने तुम्हें ना इसकी इंस्टा स्टोरी से ही पहचान लिया था। अच्छा। हाउ आर यू सीइंग माय इंस्टा स्टोरीज? मैं तो आपको ब्लॉक कर रखा है ना। तुमने इसके लिए एक वीडियो बनाया ना, बहुत क्यूट है। Guess I'm just a play date for you. थैंक यू। वो ये प्ले डेट कुछ भी नहीं है, आपको इसकी रील्स चेकआउट करनी चाहिए। फुल ऑन ड्रामेबाजी चल रही है वहाँ पे, फुल ऑन एक्टिंग। इसकी रील सब मेरी टिकटॉक से चुराई हुई हैं। हाँ, मजाक उड़ा लो मेरा। अब अगली बार अगर कोई हेल्प चाहिए होगी ना, तो मेरे पास मत आना, अपने इस होने वाले दामाद के पास ही चले जाना। अच्छा मम्मी जी, ये जो आना है ना, ये सिर्फ कॉलेज की टॉपर नहीं है। अच्छा। साइलेंट ट्रीटमेंट देने में भी टॉपर है। अजीब, बचपन से ऐसी है। मैं तो सोचती हूँ उसको तभी पूछ लेना चाहिए था कि बेटा तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी एक्यूरेट AF। AF का क्या मतलब होता है? हाँ बेटा बताओ, व्हाट इज AF? उसका मतलब तो ऐसे मुझे भी नहीं पता, मतलब बोलते हैं ऐसे ही। चलो तुम अपने पहले बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करो, मुझे बहुत काम है। बड़ा काम है या फिर माधुरी स्टैंड 1 2 3 से लोगों को स्टॉक करना है आपको इंस्टाग्राम पे? बड़ी बॉन्डिंग चल रही है ना तुम्हारी मम्मी जी के साथ। फिर
Your mom is super cool. She's super chill, man. तेरी तो बिल्कुल ही opposite है, let me tell you. What do you mean? He means he likes me more than you. देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। कैसी लगी? Oh my God, Mama, I love it. Sure. Are you sure? मतलब तुझे थोड़ा झटाक नहीं लग रहा? तुझे तो सिंपल सटल पसंद है ना? No, yeah, subtle is boring. Nice, no? Yeah, I love it. Hey guys! So what are you waiting for? Go watch Coolie #1 on Amazon Prime Video. The link is given below. And for more freshly brewed content, keep watching Filter Copy! बी हेल्दी बी स्ट्रॉन्ग ये नाम एक चैनल का यूट्यूब पे है और ये रिगार्डिंग एक्सरसाइजेस और हेल्थ के बारे में है। और ये जो अभी आप वीडियो देखेंगे ये बता रहे हैं कि आप अगर हाफ एन आवर निकाल के वॉक लेते हैं तो उसके कैसे बेनिफिट मिलते हैं, कैसे आपको चलना चाहिए, क्या करना चाहिए। चलिए देखते हैं। दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल इन योर लाइफ। देखिए। दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप रोजाना 30 मिनट की वॉक करते हैं तो उससे आपको क्या लाभ मिलते हैं। क्या आप जानते हैं कि वॉकिंग आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के सबसे सरल और प्रभावी तरीकों में से एक है। चलना एक लो इम्पैक्ट वाली एक्सरसाइज है जिससे कहीं भी किसी भी समय किया जा सकता है और इसके लिए किसी विशेष उपकरण या बड़े महंगे जिम की आवश्यकता नहीं है। कंफर्टेबल कपड़े, एक पेयर शूज और निकल जाएं अपने नजदीकी ग्राउंड या पार्क में। और फिर चाहे आप ब्रिस्क वॉक करें या नॉर्मल वॉक, यह आपको बहुत फायदे पहुंचाएगा। डॉक्टर्स आपको रोजाना 45 मिनट की वॉक की सलाह देते हैं, पर शुरुआत अगर आप 30 मिनट से भी करें तो इसके भी अनगिनत बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, हृदय रोग के खतरे को कम करती है वॉक। वॉक करने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये आपके कार्डियोवास्कुलर हेल्थ यानी हार्ट को बेहतर बनाने में मदद करता है। नियमित चलने से आपके हृदय रोग, स्ट्रोक और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा कम हो सकता है। नंबर 2, फेफड़ों की क्षमता में सुधार। रोजाना की वॉक आपके फेफड़ों की क्षमता में सुधार करने में मदद करती है, जिससे आपकी सांस लेने में सुधार हो सकता है। रोजाना की वॉक लंग्स की मसल्स में मजबूती लाती है, जिससे आपको गहरी और अच्छी तरह से सांस ले पाने में मदद मिलती है। नंबर 3, वजन घटाने में सहायक। पैदल चलना भी आपके वजन को नियंत्रित करने का एक शानदार तरीका है। तेज गति से चलने से आप अधिक कैलोरी बर्न कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्दी वेट मेंटेन करने में मदद मिल सकती है। यह मोटापे को रोकने में भी मदद कर सकता है, जो डायबिटीज जैसी कई बीमारियों के लिए मुख्य कारण है। नंबर 4, आपके मूड को बेहतर करती है वॉकिंग। वॉकिंग न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, बल्कि ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी है। पैदल चलने से तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद मिल सकती है। रोजाना की वॉक से शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जो आपके मस्तिष्क में अच्छा महसूस कराने वाले रसायन हैं, जो आपके मूड को बेहतर कर सकते हैं और आपकी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। नंबर 5, आपके संतुलन को बेहतर करती है वॉकिंग। आपके चलने का एक अन्य लाभ ये है कि ये आपके संतुलन में सुधार कर सकती है। ये आपके पैर की मांसपेशियों को मजबूत करती है और आपके पोस्चर को बेटर करती है, जिससे आपके गिरने और चोट लगने का खतरा कम हो सकता है। नंबर 6, आपकी नींद को बेहतर करने में मदद करती है वॉक। अगर आपको अच्छी नींद में समस्या है तो वॉकिंग आपकी नींद को अच्छा करने में मदद करती है। वॉकिंग आपके पूरे शरीर की कार्य प्रणाली को बेहतर करती है, जिससे आपकी नींद की क्वालिटी भी बेटर होती है। नंबर 7, विटामिन डी लेने का आसान तरीका। पैदल चलना अपने आस पड़ोस को एक्सप्लोर करने और प्रकृति का आनंद लेने का एक शानदार तरीका हो सकता है। पर जब आप खुले वातावरण में और सुबह की धूप में वॉक करते हैं तो आपके शरीर में विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। आज लोग जहां विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं, तो हल्की धूप में वॉक करना काफी फायदेमंद हो सकता है। नंबर 8, टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करने में मदद करती है वॉक। आज जहां खराब लाइफस्टाइल की वजह से डायबिटीज का खतरा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में 30 से 45 मिनट की वॉक आपके डायबिटीज होने के खतरे को कम करने में मदद कर सकती है। वॉक आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करती है और डायबिटीज होने के खतरे को कम तो सोचिए मत, रोजाना वॉक के लिए समय निकालिए। नंबर 9, हड्डियों को मजबूत बनाती है वॉक।
रोजाना की वॉक आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करती है। जब आप तेज वॉक करते हैं तो आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है और बैलेंस अच्छा होता है, जिससे गिरने और फ्रैक्चर संबंधित जोखिम को कम किया जा सकता है। नंबर 10, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करती है वॉक। रोजाना की वॉक आपके शरीर में कई तरीके से फायदे करती है। आपके शरीर में जहां रक्त का संचारण बेहतर होता है, आपके लंग्स की क्षमता में सुधार होता है, शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली भी बेहतर होती है, जो संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। दोस्तों, पैदल चलना सामाजिक होने और दूसरों से जुड़ने का भी एक शानदार तरीका है। आप चलने वाले समूह में शामिल हो सकते हैं या दोस्त और परिवार के साथ चल सकते हैं। तो इन लाभों को पाने के लिए आपको कितना चलने की जरूरत है? विशेषज्ञ सप्ताह में 5 दिन और कम से कम 30 मिनट चलने की सलाह देते हैं। इसीलिए जितना हो सके पैदल चलने को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की कोशिश करें। इन शॉर्ट, चलना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक सरल प्रभावी तरीका है। ये एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है जिसे कहीं भी कभी भी किया जा सकता है और इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। तो अपने वॉकिंग शूज पहन लें और आज ही वॉकिंग के फायदे का आनंद लेना शुरू करें। हिंदी फिल्में हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और हर हफ्ते नई नई फिल्में आती रहती हैं। पिछले हफ्ते से हमने शुरू किया है। आप कोशिश करते हैं आपको कुछ फिल्मों को इंट्रोड्यूस करते रहें, क्योंकि उनका हम ट्रेलर नहीं दिखा सकते, वो देयर इज़ द प्रॉब्लम ऑफ कॉपीराइट। तो इस हफ्ते जो 28 सितंबर को 2 फिल्में लगी हैं। एक है फुकरे 3, ये पहले 2 के सक्सेशन में हैं और इंटरेस्टिंग है, अच्छी कॉमेडी बताते हैं। और आपको देखने जाना हो तो अपना दिमाग को घर पर रख के आइएगा। और इसमें वरुण शर्मा और पंकज त्रिपाठी जो हैं काफ़ी अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। आप उनको एंजॉय करेंगे ऐसा लगता है। उससे पहले वंस अगेन मैं कहूँगा कि आप YouTube पे इसका ट्रेलर भी मौजूद है, वो आप देखिए। और अलग अलग चैनल पे कमेंट आते रहते हैं, मुझे वो ज़्यादा देखिए, फिर देखना चाहिएगा। ऑफ कोर्स ऐसा लगता है कि यू विल बी एबल टू एंजॉय दिस मूवी। एक है प्यार है तो है, ये भी 28 सितंबर से लगी है। कलाकार नए हैं जो आप ज़्यादा नहीं जानते होंगे। ये रोमांटिक फिल्म है। इसके बारे में भी आप पहले मैंने बताया कि भी उसका भी ट्रेलर देखिए, कुछ कमेंट वगैरह क्रिटिक्स जो हैं उनको देखिए, फिर आप अपना मन बनाइए, क्योंकि वंस अगेन टिकटें महंगी होती हैं और टाइम पे निकालना होता है आपको। चलिए अगले बार फिर कुछ डिस्कस करेंगे किसी फिल्म के बारे में। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।